नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनसंख्या नियंत्रण जन जागरूकता वाहन रैली के लिए अभियान। अमरनाथ यात्रा कनेडा सुरक्षित है, बसवराज बुम्बई। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर किया अशोक स्तंभ का उद्घाटन। 6.5 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। बारिश से बदहाल गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा, जुर्माना भी लगाया। बीदर जिले में कीटाणुओं के कारण फसल नष्ट हो रही है। किसान इस बात से अधिक परेशान हैं। जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल ने कोई क्रम नहीं लिया है। यह बात केपीसीसी कार्याध्यक्ष और भारती के विधायक ईश्वर खंडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। वह शहर के अक्का महादेवी कॉलेज में आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में फसल का अधिक नुकसान हो सकता है यदि इस फैलते रोग को नियंत्रित न किया गया। खंडे ने जिला प्रभारी मंत्री की निंदा करते हुए कहा कि वह जिला का दौरा नहीं कर रहे हैं और न ही केडीबी की बैठक में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर विधायक राजशेखर पाटिल, रहीम खान, जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष मीनाक्षी संग्राम और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। स्वागतವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ರहीम ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಜಾಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಇವತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80% ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮುಂಗಾರು ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಳಂಬ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 3,77,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿತ್ತಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 80% 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ಬಹುತೇಕ 60-70% ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಬಿತ್ತಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಈ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶಂಕದ ಹುಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಹುಳು ಬಾಧೆಗೆ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 8 ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಅದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಶಂಕದ ಹುಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಅದು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ। ದಿನನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತದೆ। ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಸ್ತಿ ಏನ್ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿದ್ದಿತ್ತು, ಮನೆ ಹಂಚಿದ್ದಿತ್ತು, ತಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನೈತಿಕತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ। ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2027ಕ್ಕೆ ಸೂರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸೂರು, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸೂರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸೂರು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಸ್ತಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಿವೇಶನ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂತು ಹಣ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆ ನಾವು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೋಗಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ. ಬೋಗಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ? ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು 3,345 ಮನೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹಣ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಲಿಂಟಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಛಾವಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ? 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 250ಕ್ಕಿಂತಲೂ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕೊಡೋದೇ 2,20,000. ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 250 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಿವೇಶನ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣದು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು 3,300 ಈ ರೀತಿ 6,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು, ಬಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪನು ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೋ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ರಾಜಶೇಖರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನೀ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಡಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6,000 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 × 1,50,000 ಸರಾಸರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ, ಬಾಲ್ಕಿ ಜನತೆಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮನೆನೂ ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1,500 ಮನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದಾವ? ಏನು ಆದ್ರೆ 2022ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂರು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸೂರು. ಇವತ್ತು 2022ಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು 1000 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. बीदर शहर में चल रहे चेन स्नैचिंग के गिरोह पर आज बीदर पुलिस ने नकेल कसकर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से लगभग 5 लाख मूल्य की सोने की चैन बरामद की गई है। यह बात बीदर के एडिशनल एसपी महेश मेघन्ना ने पत्रकारों से बताई। वह गांधीगंज पुलिस स्टेशन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर डीएसपी KM सतीश, CPI और PSI आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। गांधीगंज पुलिस स्टेशन सिद्धरामಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹಕ್ ಕಾಲನಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಗುಂಪಾ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ ಆ ಥರ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಈಗ ಹೂವು ತರುವಾಗ ಗಿಡದಿಂದ ಹೂ ತರುವಾಗ ಇವರು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾಳಿ ಆಗಲಿ ಚೈನ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು 4-5 ಕಡೆ ಆಯಿತು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. DYSP ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ನವೀನ, ಅನಿಲ, ಇರ್ಫಾನ್, ಹರೀಫ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು CCTV ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಟವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು
ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ नगद ಇದು अंदाज कीमत। आज अग्निशमक विभाग द्वारा पीदर शहर के अग्निशमक कार्यालय में एक नई वाहन का उद्घाटन विभाग के सीपीआई मुजम्मिल पटेल ने किया। इस अवसर पर भारत रक्षणा वेदिकी के युवा घटक के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर गोंडापुर सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर परिवार नियोजन के विचारों को अपना बनाए और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जागरूकता पैदा करने के लिए 11 जुलाई से 24 जुलाई तक पाक्षिका सेवा वितरण नारे के साथ उत्थान का एक नया अध्याय लिखे। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार कल्याण नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए आम जनता ने जागरूकता फैलाने के लिए सोमवार को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऑटो के लाउडस्पीकर के माध्यम से लगभग 22 वाहन को रिबन काट चालना दी गई। राज्य सरकार ने कहा कि कर्नाटक से संबंधित 370 तीर्थयात्रियों के बारे में जानकारी मिली है जो अमरनाथ यात्रा मार्ग के साथ विभिन्न स्थानों पर हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि किसी भी कन्नड़ के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। बोम्मई ने कहा राज्य सरकार फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। अमरनाथ यात्रा पर गए कन्नड़ लोग सुरक्षित हैं और कन्नडिगों से संबंधित किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हम जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। बोम्मई ने कहा मुख्य सचिव वंदिता शर्मा केंद्र सरकार के साथ सीधे संपर्क में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक राजनीतिक मामले की समिति का गठन किया है। उन्होंने एआईसीसी के 5 सचिव भी नियुक्त किए। डी श्रीधर बाबू, विधायक पीसी विष्णुनाथ, विधायक रोजी एम जॉन, विधायक मयूरा एस जयकुमार और अभिषेक दत्त कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला को तत्काल प्रभाव से संबद्ध कर दिया गया है। सुरजेवाला को पीएससी का संयोजक नियुक्त किया गया है और जिसमें 22 सदस्य हैं। समिति के अन्य सदस्यों में राज्य कांग्रेस प्रमुख डी के शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और एम वीरप्पा मोइली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद, दिनेश गुंडूराव, मार्वेट अल्वा, डीके सुरेश और पार्टी के अन्य लोग टास्क फोर्स में शामिल हैं। सिविल सेवकों के सेवानिवृत्ति होने के बाद भी उनके लिए रोजगार के रास्ते बंद नहीं होते हैं। या तो आकर्षक निजी क्षेत्र बुला रहा है या सरकार अक्सर विभिन्न भूमिकाओं में उनकी सेवाएं लेती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों की एक बड़ी संख्या ने अलग अलग सफलता के साथ राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है। तथ्य यह है कि उनकी बिरादरी के कई लोगों ने हार का स्वाद चखा है। यह एक निवारक नहीं है। देश के निर्माणाधीन नए संसद भवन पर आज सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। खबरों के अनुसार यह प्रतिमा कांस्य धातु की बनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। अनावरण के बाद वहां निर्माण कार्यों में लगे कामगारों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत भी की। गुजरात में भी भारी बारिश मुसीबतों का पहाड़ बनकर आई है। राज्य के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। बारिश से रेल यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। चाणोद और एकतानगर रेलवे स्टेशन के बीच भारी बरसात के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सभी ट्रेन रद्द की गई हैं। बारिश के पानी के तेज बहाव के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी खिसक गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले 5 दिनों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को बैंकों की $40 मिलियन की रकम ब्याज के साथ 4 हफ्तों में जमा कराने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर माल्या यह रकम जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने आज अपने कार्यालय पर मीटिंग कर कहा, हमें ईडी से कोई परेशानी नहीं, परेशानी उसे हो जो चोर हो। ईडी की पूछताछ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो मेरी मां को भी कब्र से बुला सकते हैं, सारे प्रोटोकॉल खत्म हो गए हैं। सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा कि चोर उचक्का आदमी हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ। इसके अलावा नफरतों की इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होगी। अगर रुस्वा होते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमने यूनिवर्सिटी को चंदा लेकर भीख लेकर बनाया है। अगर इसका भी हमें जवाब देना पड़ रहा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बताया है कि वह 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि वह बुधवार को इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में की है जब प्रदर्शनकारियों ने देश के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर शनिवार को उनके आधिकारिक आवास पर हमला कर दिया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कॉफी विद करण 7 में करण जौहर ने लगाई सारा कार्तिक के रिश्ते पर मोहर, खफा हुई एक्ट्रेस। अब समाचार खेल जगत के। एजबेस्टन टेस्ट में भारत के जबड़े से जीत छीनने वाले अंग्रेज बल्लेबाज को मिला आईसीसी का पुरस्कार। अंत में समाचार बाजार के। रिटर्न फाइल करते समय में दे सही जानकारी, गलत इंफॉर्मेशन देने पर लग सकता है भारी जुर्माना। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जनसंख्या नियंत्रण जन जागरूकता वाहन रैली के लिए अभियान। अमरनाथ यात्रा करेगा सुरक्षित है, बसवराज बोम्मई। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर किया अशोक स्तंभ का उद्घाटन। 6.5 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई। बारिश से बदहाल गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा, जुर्माना भी लगाया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।